چینی کے دام ہر طرف بے لگام، غلہ منڈی میں بھی چینی کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول۔ فیصل آباد میں تھوک پر چینی 174 روپے کلو ہو گئی۔ برآمد، سمگلنگ اور سٹے بازی، فیصل آباد میں چینی کی قیمت کو پر لگ گئے۔ 50 کلو کا تھیلا 8700 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ تھوک پر فی کلو چینی کی قیمت 174 روپے ہو گئی۔ غلہ منڈی کے ہول سیلر دکاندار کا کہنا تھا کہ چینی کی قیمت میں اضافے کی بنیادی وجہ اسمگلنگ ہے۔ چینی افغانستان اسمگل کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بار گنے کی سرکاری قیمت بھی زائد مقرر کی گئی ہے۔ اگر اسمگلنگ کی روک تھام نہ کی گئی تو آئندہ سال بھی چینی کی قیمت بڑھے گی۔ چینی کی قیمت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ کیونکہ ایک تو اسمگلنگ ہوئی ہے، افغانستان گئی ہے چینی آپ کی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سال جو گنے کا ریٹ ہے وہ گورنمنٹ نے 425 روپے من کیا ہے۔ پچھلے سال اس کا ریٹ تھا 300 روپے من۔ مارکیٹ میں چینی 180 روپے سے 190 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ ایکس مل ریٹ 175 روپے فی کلو پر پہنچ گیا۔ شہری پریشان، بولے مہنگائی سے غریب مر رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ بہت زیادہ ریٹ ہو چکے ہیں، کیا کریں، بچوں کو پالیں یا کھانا کھائیں۔ چینی کی قیمت روز بہ روز بڑھ رہی ہے، پٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے۔ چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ کہتے ہیں، شہر میں گرام فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ کسی کو چینی کی مصنوعی قیمت بڑھانے یا مصنوعی قلت پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جتنے بھی ڈیلرز ہیں یہاں پہ، ڈیلر اور بروکرز ہیں جو یہاں سے چینی سپلائی کرتے ہیں دکانداروں کو، ان کے ساتھ ہم رابطے میں، اور ان کی جو اسٹاک ٹیکنگ ہے، ان کے پاس کتنا اسٹاک اویلیبل ہے، اس کی بھی ہم تفصیل ان سے ریگولر لیتے رہتے ہیں۔ اب دوبارہ بھی ان سے ہم لے رہے ہیں، اور کسی کو بھی جو ہے نا اس کے حوالے سے ہورڈنگ کی یا ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے حوالے سے ہم نے 2 کارروائیاں بھی کی ہیں سمندری کے اندر، اور جو ذخیرہ اندوزی میں اس طرح کے لوگ ملوث تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی گئی ہے۔ حکومت نے چیک اینڈ بیلنس کے نظام کو مؤثر نہ بنایا تو آنے والے دنوں میں چینی کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فضیل احمد کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ چینی کی قیمت تاریخ کی بلندترین سطح پر پہنچ گئی۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے تنگ غریب عوام کے لیے کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہونے سے جینا محال ہو گیا۔ حکومت ریلیف دینے کی بجائے غریبوں کا خون نچوڑ رہی ہے، شہریوں کی دہائی۔ ٹوبا میں چینی کی تیز ترین اننگ جاری، ڈبل سنچری کے قریب، 195 پر ناٹ آؤٹ۔ بے لگام مہنگائی عوام کی جیبیں چھلنی کر گئی۔ چینی کا 50 کلو کا تھیلا 8950 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ شہری حکومت پر برس پڑے، بولے حکومت عوام کو مہنگائی کے وار کر کے مار ڈالے گی۔ حکومت ریلیف دینے کی بجائے عوام کا خون نچوڑ رہی ہے تاکہ اشرافیہ کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ مہنگائی کے طوفان نے کئی گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے، مگر کسی کو غریب کی پرواہ نہیں۔ شہریوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور مافیا کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ چینی اس وقت جو ہے نا، آج میں لینے آیا ہوں تو 195 روپے کلو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں جی۔ صورتحال تو یہی ہے کہ پہلے جو 2 کلو لے کے جاتے تھے اب آدھا کلو سے گزارا کر رہے ہیں، اور گھر سے یہ کہا ہے کہ جو 3 چمچ آپ استعمال کرتے تھے اب 2 چمچ کریں۔ چینی جو ہے وہ ہر چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہر وقت استعمال کی چیز ہے، یہ تو بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوائیں یا گھر کا راشن پورا کریں، بندہ جائے تو کہاں جائے؟ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، اور گورنمنٹ کا کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے، اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جنگ میں بھی چینی کے ریٹ ہوش اڑانے لگے۔ 80 روپے کلو والی چینی 180 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ دیہات میں چینی 200 روپے کلو میں بیچی جانے لگی۔ تاجروں کے مطابق بیرون ملک چینی بھیجنے سے قیمتیں بڑھ رہی۔ چینی کا تھوک ریٹ 175 روپے کلو، آٹا، گھی اور اب چینی قوت خرید سے باہر ہو چکی۔ صارفین کی دہائی۔ شہریوں نے کہا چینی کی قیمتوں کو بڑھانے میں سابقہ حکومت کا کردار واضح ہے۔ نگراں حکومت شہریوں کو اس مہنگائی کی دلدل سے نکالے۔ انتظامیہ کی ناکامی، مہنگائی کا سونامی، ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی ناقص کارکردگی کے بعد سٹی 41 ضلع انتظامیہ کی ایک اور نااہلی سامنے لے آیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس مصنوعی مہنگائی روکنے میں ناکام۔ ڈی سی کمیٹی کی جانب سے جاری ریٹ لسٹیں مارکیٹ میں قیمتوں سے مختلف۔ ایک ہفتہ قبل جاری دالیں، چنے اور دودھ و دیگر اشیاء کی ریٹ لسٹ پر کچھ بھی دستیاب نہیں۔ سٹی 41 نے غلہ منڈی سے قیمتوں کا پتہ لگایا تو تھوک سے بھی زیادہ نکلیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق پرچون میں چنا سفید باریک 315 جبکہ غلہ منڈی میں 325 روپے کلو میں مل رہا ہے۔ چنا سیاہ موٹا پرچون میں 210 جبکہ غلہ منڈی میں تھوک کی قیمت 210۔ دال چنا موٹی سرکاری لسٹ پرچون 205 جبکہ غلہ منڈی میں 225 روپے میں دستیاب ہے۔ دال چنا باریک سرکاری پرچون 200 جبکہ غلہ منڈی میں تھوک بھی 200 روپے کلو میں مل رہا ہے۔ دال مونگ کوری سرکاری پرچون قیمت 220 اور غلہ منڈی تھوک 240 کی کلو ہے۔ دال ماش دھلی ہوئی کی سرکاری پرچون قیمت 500 روپے جبکہ غلہ منڈی میں 550 روپے کلو ہے۔ دال ماش بغیر دھلی سرکاری پرچون قیمت
450 रुपए, जबकि गल्ला मंडी में थोक भी 450 रुपए है। दाल मसूर बारीक सरकारी परचून कीमत 330 रुपए, जबकि गल्ला मंडी में थोक 375 रुपए किलो है। दूध की कीमत 140 रुपए, जबकि डेयरी फार्म्स का रेट 150 रुपए से भी ज्यादा है। दुकानदार कहते हैं रेट लिस्ट सिर्फ हमें जुर्माने करने के लिए है, जहां से एशिया आती हैं वहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, राशन खरीदना लोगों के लिए नामुमकिन है। रेट मार्केट में मंडी में ज्यादा है, दुकानों पे कम कहते बेच रहे हैं तो बिक नहीं रही किसी भी जगह पे। ये सिर्फ इसलिए है वो जब मजिस्ट्रेट वगैरह आते हैं हमें जुर्माना कर चले जाते हैं, पूछते मुझे कुछ नहीं, बस जुर्माना किया चले गए, पर वो इसलिए हम बैठे हैं। इस रेट में चीज कहीं भी दस्तियाब नहीं है, मंडी में भी दस्तियाब नहीं है, तो हम कैसे बेच सकते हैं? कोई भी नहीं बेचता। गिरां फरोशों को खुली छुट्टी, आवाम लुटने पर मजबूर। प्राइस कंट्रोल कमेटियों समेत तमाम अदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश का बहरान, चीनी घी के बाद आटा भी नापैद हो गया। वफाकी हुकूमत आवाम को महंगाई से रिलीफ देने में नाकाम। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स में खाली रैक, सस्ती अशिया के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरियों का मुंह चढ़ा रहे हैं। खवातीन घंटों इंतजार करने पर मजबूर, आटे के साथ अशिया खुरनोश की अदम दस्तयाबी पर परेशान, खाली हाथ मायूस होकर घरों को लौटने लगी। हम अपने मामलाती जिंदगी को छोड़कर सस्ती अशिया के लिए लाइनों में लगते हैं ताकि ये सस्ती अशिया खरीद कर अपने अहले खाना के लिए खाने का इंतजाम कर सके। जब ये अशिया नहीं मिलेंगी तो यूटिलिटी स्टोर्स का क्या फायदा है? खवातीन का शिकवा। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਟਾ ਨਾ ਖੰਡ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਾ ਦਿੰਦੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਜਿਓ, ਘੇ ਲੈ ਜਿਓ, ਆਟਾ ਲੈ ਜਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਹੀ ਆ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ आना कदों। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। हर तरफ एक ही दुहाई, महंगाई महंगाई महंगाई। चिन्नी में सरकारी दफातर की तालाबंदी, मुलाजमीन का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। एपका और पंजाब टीचर्स यूनियन ने अगीगा के ज़ेरे एहतमाम सरकारी महकमों की तालाबंदी कर दी। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के प्लेटफार्म से मुलाजमीन ने महंगाई, बेरोजगारी, बिजली बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में सरपरस्त आला इजाज हरल, अंसर सद्दूस सदर एपका, अहमद रिजवान सीनियर सदर एपका, मंजूर अहमद भट्टी जनरल सेक्रेटरी, नवाज भूटा चेयरमैन, सफदर कालरू मरकजी नायब सदर पंजाब टीचर्स यूनियन व दीगर महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन पेंशन और लीव इनकैशमेंट के कानून में रद्दोबदल पर फट पड़े। बोले पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर मराहत में कमी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कन्वेंस हाउस में महंगाई की शरह के मुताबिक इजाफा किया जाए। हमारा मुतालबा है कि लीव इनकैशमेंट में जो जालिमा तरमीम कर रहे हैं उसका खात्मा किया जाए। पेंशन रूल्स में जो जालिमाना तरामीम कर रहे हैं उसका खात्मा किया जाए। अपना महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। लीव इनकैशमेंट बोल दिया और SSC को मुस्तकिल किया जाए। क्लास 4 को अपग्रेड किया जाए। शुरका ने पेट्रोल, बिजली, गैस, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट के वक्त वापस की जाए। मुजाहिरीन ने सरकारी स्कूलों की निजकारी नामंजूर के भी नारे लगाए। हमारा मुतालबा है कि लीव एनकैशमेंट के जो काला कानून है उसको ख़त्म किया जाए। पेंशन और ग्रेजुएटी को छेड़ने की कोशिश मत की जाए और हमारे जो एजुकेटर हैं 14,000 हमारे एयूज़ और एजुकेटर जो है उनको मुस्तकिल किया जाए। इस महंगाई के तरफ से जो है वो उसमें तनख्वाह में इजाफा किया जाए। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जंग में इंशारा ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन मोहम्मद और के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिनियोट। पेंशन और लीव इनकैशमेंट पर कट। महकमा एजुकेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लोकल गवर्नमेंट और दीगर महकमों के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और लीव इनकैशमेंट के कवानीन में तब्दीली पर टोबा टेक्सिंग में मुलाजमीन सरापा एहतजाज। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस एसोसिएशन ने प्रेस क्लब तक रैली निकाली। तमाम महकमों के सरकारी मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुलाजमीन का कहना था महंगाई के इस दौर में हुकूमत ने पेंशन और लीव इनकैशमेंट कवानीन में तब्दीली करके हमारी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। महंगाई से सताए मुलाजमीन को रिलीफ की बजाय बड़ा धचका दिया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से लीव इनकैशमेंट कवानीन में तब्दीली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया। ये रैली ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के प्लेटफार्म से हम निकाल रहे हैं और इसमें लीव इनकैशमेंट, LPR वगैरह वगैरह ये काफ़ी सरकारी मुलाजमी जब रिटायर होते हैं जो बेनिफिट 1973 के कवानीन के मुताबिक इन्होंने हमसे किया है वो ख़त्म कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो इस लेटर, जालमाना लेटर को वापस ले लें और हमारे साहब का जितनी सहूलतें, जितने बेनिफिट हैं वो बहाल कर दें।
फैसलाबाद में महकमा तालीम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल गवर्नमेंट और दीगर महकमों के मुलाजमीन का एहतजाज, मुतालबात की अदम मंजूरी पर धरना देने का इंदिया। मुलाजमीन ने लीव इनकैशमेंट, पेंशन पर कट खत्म करने और यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज के ट्रांसफर कैंसिल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमती मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद करें। हमारे मुतालबा है, पहले तो हमारी लीव कैशमेंट में हुकूमत ने कट लगा दिया, दूसरे नंबर पे लीव कैशमेंट, दूसरे नंबर पे पेंशन और ग्रेच्युटी पे भी कट लगा दिया। उसके वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ हमारा मेन मुतालबा जो है ये हमारे सेक्रेटरी साहबान का है कि उनका पंजाब में तमाम 36 जिलों में तबादला कर दिया गया है कि फिल फोर वो आर्डर वापस करें। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ये मेरे साथी वर्कर मजदूर जितने भी मुलाजमीन हैं ये उस वक्त तक धरना देंगे जब तक कि हमारे मुतालबात मान लिए जाते हैं। पेंशन और लीव इनकैशमेंट में तरामीमी कवानीन के खिलाफ झंग के सरकारी मुलाजमीन सीखवा। मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, एजुकेशन और दीगर जिले दफातर में कलमछोड़ हड़ताल की गई। मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। फिरका का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। मुजाहिरे में साजा भी शरीक, स्कूलों में स्याह पट्टियां बांध कर तदरीसी अमल में शामिल हुए। महंगाई की मोटरवे पर यामाहा की ब्रेकें फेल। मोटरसाइकिलों की कीमतों में 15 से 17,000 रुपए तक का इजाफा। YBZ 1,50,500 रुपए महंगी, कीमत 3,96,000 हो गई। YBDX 15,500 रुपए महंगी होने के बाद 4,23,500 रुपए की हो गई। YBR 16,500 रुपए इजाफे से 4,35,500 की हो गई। YBRG 17,000 रुपए महंगी होकर 4,53,000 में मिलेगी। डीलर्स के मुताबिक डॉलर महंगा होने से कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान टॉप एक्सपोर्टर्स की लिस्ट से बाहर। मुसलसल गिरती एक्सपोर्ट ने पाकिस्तान को खित्ते में सबसे पीछे छोड़ दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कहा, बैन अक़वामी खरीदार भी हमारे हालात से वाकिफ हो चुके हैं। पाकिस्तान टॉप एक्सपोर्टर्स की लिस्ट से बाहर। मुसलसल गिरते एक्सपोर्ट ने पाकिस्तान को खित्ते में सबसे पीछे छोड़ दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कहा, बैनुल अक़वामी खरीदार भी हमारे हालात से वाकिफ हो चुके। हालात यही रहे तो रहे से खरीदार भी हमें छोड़ जाएंगे। पाकिस्तान टॉप एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में नहीं रहा। डॉक्टर खुर्रम तारिक बोले, वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका और दीगर ममालिक की एक्सपोर्ट मजबूत हो रही और यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि इन हालात में अपने ऑर्डर्स कैसे पूरे करें। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक ना मैं प्राइस कोट्स कर सकता हूँ एज एक्सपोर्टर, ना एक्सपोर्ट बढ़ेगी। दूसरी बात, ये अनसर्टेनिटी जो है ये बाकी मुल्कों में जो हमारे कस्टमर बैठे हुए हैं वो भी देख रहे हैं और हम यहाँ पर पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाते जो दुनिया में कहीं बनती ना हो, तो ये कंपटीशन में माल बिकता है। सदर FCCI ने कहा, हम पाकिस्तान में कोई ऐसी मसनूआत नहीं बनाते जो कहीं और नहीं बनती हों, लिहाजा हमारा खरीदार हमसे दूर जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। निगरान सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर की फैसलाबाद आमद। ईवान ने सनअत व तिजारत फैसलाबाद का दौरा, इजलास में शिरकत, मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। निगरान सूबाई वजीर सनअत व तिजारत SM तनवीर दौरे पर फैसलाबाद पहुंचे। ज़री यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर राना इकरार अहमद और प्रोफेसर हजरात से मुलाकात की। सूबाई वजीर का कहना था कि मुल्क की ज़राई सेक्टर में इनकलाबी तब्दीलियां ला रहे हैं। 3 माह में अगले 10 साल का इनकलाबी प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं और बिलीव कर रहे हैं कि ये काम ठीक होने जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से होगा। और एग्रीकल्चर में तो काम शुरू हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, थल तो 4 मिलियन एकड़ जगह, उस पर दिन रात काम शुरू करके ज़मीनों को सीधा किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर वो चीज़ है जो लो हैंगिंग फ्रूट आप फ़ौरन पकड़ रहे हैं। सूबाई वजीर SM तनवीर ने चैम्बर के अहदेदारान से मुलाकात की। नेशनल ग्रुप लीडर मियां मोहम्मद अदरीस ने मुल्की माशी हालात से दरपेश मसाइल से आगाह किया। पिछले महीने के यूनिट तो इस महीने के यूनिट का 110% बिजली इंक्रीज हुई है। यूनिट ज़्यादा नहीं, यूनिट नहीं, सेम यूनिट्स के साथ सेम पिछले साल के सेम यूनिट्स के साथ पिछले साल और इस साल के सेम पीरियड में जो रेट है सेम यूनिट्स का वो 110% ज्यादा। सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक ने बताया कि लोगों में बिल जमा कराने की हिम्मत है, न जेब इजाजत देती है। आज अपना जेवर बेच रहे हैं, ये वर्केबल नहीं है और ये बहुत ही सीरियस सूरत हाल, थ्रेटनिंग सूरत हाल। मैं आपके होशगुजार करूँगा कि यहाँ पर लोग, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो गोल्ड तो बालियाँ तो बेच देते हैं, ये जो नाक का कोका होता है ना, दिस इज द लास्ट थिंग टू सेल, क्योंकि ये तो डेड बॉडी में से भी नहीं निकाला जाता। तो जब ये बिकने पर आ जाए, जब नाक नंगा हो जाए, तो दैट्स अ वेरी ऑमिनस साइन। SM तनवीर ने बिजनेस कम्युनिटी को बताया कि आर्मी चीफ से मुलाकात में इनकलाबी फैसले किए हैं, बहुत जल्द मस्बत नताइज नजर आएंगे। जो फेडरल गवर्नमेंट आई है, मैं उस तरफ वापस जा रहा हूँ। हम लोग बहुत पर्सनली बहुत पॉजिटिव हैं कि इसका सलूशन निकालेंगे, बहुत, और वो काम भी दिन और रात कर रहे हैं।
मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन के अंदर हमें गुड न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी, आई एम वेरी श्योर। बाकी रही पंजाब गवर्नमेंट, सर पंजाब गवर्नमेंट में हमारे किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी डिपार्टमेंट से कोई भी काम है, कोई भी आपका जायज़ काम है, प्लीज़ मुझे पता है, मैं अवेलेबल हूँ। इजलास में काशिफ ज़िया, सिकंदर आज़म, बिलावल वहीद, बाबर शहजाद, सईद इकबाल, असलम भल्ली, डॉक्टर सज्जाद अरशद समेत सफर संधू और मियां तनवीर और दीगर ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से सुप्रीम अंजुमन ताजरान के एजाज़ में तकरीब। इस मौका पर केमिस्ट एसोसिएशन ने सुप्रीम अंजुमन ताजरान में शमूलियत का ऐलान भी किया। तकरीब में केमिस्ट एसोसिएशन और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के तमाम अहदेदारान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। में केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन और जो दूसरी जानिब जो है सुप्रीम अंजुमन ताजरान की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जो है केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन और दूसरी जानिब जो है सुप्रीम अंजुमन ताजरान के तमाम ओहदेदारान की जानिब से जो है वो शिरकत की गई। इस मौके पर जो है तमाम ओहदेदारान की जानिब से स्पीच भी की गई और इस मौके पर केमिस्ट एसोसिएशन का कहना था कि हम जो है सुप्रीम अंजुमन ताजरान के जो है शाना बशाना खड़े हैं। इसी वाले से हमारे पास चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान और साबिक एमएनए मियां अब्दुल मनान मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अच्छा सर, बताइएगा आज की तकरीब के वाले से क्या कहते हैं? केमिस्ट एसोसिएशन पहले भी आपके साथ खड़े थे, आज भी शाना बशाना खड़े हैं, तो क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि तकरीबन आज से 26 साल पहले जब हमने फैसलाबाद में मरकज़ी अंजुमन ताजरान बनाई थी, तो उस वक़्त चौधरी गुलाम सरवर साहब और मियां तनवीर साहब ये केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और मेरे ख्याल में शुरू से ये था, चूँकि मैंने फिर पूरे पाकिस्तान में ताजरों की क़ियादत की, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, केमिस्ट एसोसिएशन की एक अपनी शनाख्त और एक अपना वक़ार है। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि बाज़ार के साथ इनको मिलाएं, मैंने अपनी राय में इसकी मुखालफत की। मैंने कहा केमिस्ट एसोसिएशन मेरी अकल के मुताबिक, जितना अल्लाह मियाँ ने मुझे तजर्बा दिया है, ज़्यादा बावकार है बनिस्बत किसी बाज़ार के साथ मिलने से। इनका ग्रुप हमारे साथ है, हम इसके मशकूर हैं। इन्होंने आज हमारे साथ मेहरबानी की है और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हमारा और इनका साथ लंबा चलेगा और हम एक दूसरे के मसाइल मिल के हल करें। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट एसोसिएशन के सदर इमरान अनवर भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा, क्या कहते हैं आज की तकरीब के वाले से? बहुत अच्छा आपकी आपस में आज गेट टुगेदर हुई, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारा जो आज एफिलिएशन इत्तेहाद हुआ है वो सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद के साथ हुआ है और ये इनका किरदार है और इनकी डेडिकेशन है ताजर तंजीमों के लिए, ताजरों के लिए, उनके कॉज के लिए। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इनके साथ मिलकर मज़ीद बेहतर तरीके से ताजर की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए इनके बहुत हम मशकूर हैं, भल्ली साहब के, मियां मनान साहब के, कि वो आए और उन्होंने हमें अपनी फर्जंदी में अपनी चादर तले लिया। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान और केमिस्ट एसोसिएशन का एक दूसरे के शाना बशाना जो है साथ देने का जो है यहाँ पे इजहार किया गया। इस हवाले से तमाम ओहदेदारान की जानिब से जो है वो आज बहुत शुक्रिया अहमद साद अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी, 24 घंटे में मजीद 5 मरीजों का इजाफा। जिला भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 119 हो गई। सबसे ज्यादा जिला टाउन में 30, मदीना टाउन 29 और इकबाल टाउन में 28 मरीज रिपोर्ट हुए। लालपुर टाउन में 13, सदर फैसलाबाद में 11, झुमरा 4 और जड़ावाला से 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से शहरियों से डेंगू SOP पर अमल दरामद की अपील की जा रही है।